Okay, students. So now we are going to start a mock interview for our student Sarita Kumari, and she has been shortlisted for the post of lecturer as well as assistant professor through BPSC. So Sarita, today we are going to conduct your snap on differential equations, right? Yes, sir. Okay. So first of all, Sarita, tell me what is a differential equation? So an equation which contain the derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called the differential equation. How do we classify differential equations? Classified means How do we classify differential equations? if the we classify differential equation in two form, ODE or PDE. If the dependent variable is only one in the given differential equation, then we say this is ordinary differential equation. And if we have more than two independent variable, two or more than two, then we say that this is partial differential equation. Okay, so more than one dependent or independent? Independent, or maybe dependent also, but more than two independent variable. जैसे z है तो वो फंक्शन ऑफ x है, अगर एक ही वेरिएबल है तो उसे हम ऑर्डिनरी बोल देंगे, लेकिन अगर वो दो x और y दो का फंक्शन है और हमारे इक्वेशन में डेरिवेटिव geometrically what does a differential equation represent? So geometrically differential equation basically represents the curves. We find the when we find the solution of differential equation, then we get the equation of curves, family of curves. So suppose we have a curve, family of curve, you can say xy equal to c1 plus c2. xy equals to c1 plus c2. Okay. Yeah, where c1 and c2 are arbitrary constants. Okay, sir. So if we form a differential equation, if we want to represent this with the help of a differential equation, what will be the order of the differential equation formed? Sir, we have you are giving me c1 plus c2, so I can consider it a c3 number, a single constant. So this equation contain only one constant, so we have when we differentiate it, we get first order differential equation. Okay. Suppose we are writing d upon dx of x cube y square. dy upon dx? X cube into y square. So what will be the output? Dy by dx equals to x cube into y square. See on the screen. See on the screen. Okay, sir. This result you have to tell me. Sir, okay. 3x square. 1 second, I will give complete answer. Three x square into y square plus x cube 2x cube into y into dy by dx equals to, that's it. Okay. Now tell me what is order of a differential equation. So if we have highest order of the derivative of highest order derivative in the given differential equation is called the order of the differential equation. For example, if I have y double dash plus y equals to 0, then this differential equation is second order, because in this differential equation second order is the highest order derivative in the given equation. Can we have a differential equation in which order of the differential equation is less than degree? Can we have such equation? Order is less than degree. Order.
any differential equation can we have in which order is less than degree? यस सर। सर वो ओडी नहीं रहेगा, वो ओडी नहीं रहेगा तब, मतलब ODE नहीं रहेगा। नहीं सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं रहेगा फिर तो। अच्छा, अगर ऑर्डर डिग्री से कम है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं रहेगा। सर एक सेकेंड, सर वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा ना। ऑर्डिनरी के डेफिनेशन में ये आता है ना कि चलो। डिग्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव और वो साथ में नहीं अच्छा ये आना बताओ, चाहिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन? जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, dy अपॉन dx होल क्यूब प्लस y इक्वल टू x, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। तो इसका ऑर्डर कितना है? व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर 1 है सर। और डिग्री? डिग्री भी 1 है। डिग्री 1 है इसका। सॉरी सर, डिग्री इसका 3 है। dy by dx equals, अरे पूरी इक्वेशन दिख रही है स्क्रीन पे, देखो ना। सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितना होता है उसी की डिग्री होती है, तो कितनी पावर है इसकी dy अपॉन dx की? 1 है। 1 कहाँ पे? 3 नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें ये? सर आप y का भी ऐड कर रहे हैं क्या? अरे यार मैं पूछ रहा हूँ dy अपॉन dx। अच्छा होल क्यूब। सर, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है फोन पे ना, वो स्क्रीन आप क्वेश्चन इधर लिख रहे थे और वो मुझे हाँ सर ये 3 है, सॉरी। इसकी डिग्री 3 है और ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है। अब ये बताओ, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? यस सर। तो इसमें आप तो मना कर रहे थे। नो सर, इसमें हाँ डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है और इंडिपेंडेंट भी 1 है, तो ओडी है ये। तो आपने जो लॉजिक दिया सर था वो फिर सही है सर कि वो गलत है? मैं लीनियर और नॉन लीनियर में का बोलने लगी थी, सॉरी सर। वो लीनियर का मैं बता रही थी कि वो लीनियर के केस में होता है। अच्छा बताओ, कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ODE, ठीक है, जी तो उसके लीनियर होने की क्या कंडीशंस हैं? किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर होने की कंडीशंस बताओ जरा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल के का पावर हमेशा 1 होना चाहिए, सिंगल ऑर्डर पावर होना चाहिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट या फिर नहीं आना चाहिए एक साथ। मतलब वाई स्क्वायर या वाई डैश स्क्वायर ऐसा नहीं आना चाहिए, और वाई वाई डैश भी साथ में नहीं आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, dy अपॉन dx प्लस जी रूट x इक्वल टू 0, इसकी डिग्री बताओ। ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। ऑर्डर 1 और डिग्री 2, ये लीनियर इक्वेशन है कि नॉन लीनियर है? सर अभी तो लीनियर है सर, बट जब इसे हम मतलब लीनियर इक्वेशन आप बोल रहे हो और डिग्री आप 2 बता रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री 2 हो सकती है? नहीं सर। फिर सर जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सर ये लीनियर है और इसका ऑर्डर भी 1 है, इसका डिग्री भी 1 है। क्योंकि ये रूट एक्स में है, तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये वाई के पावर में रहता, अगर कुछ भी पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता पावर, तब हम उसको डेसिमल फॉर्म में वो चेंज करते। अभी ठीक है, ये लीनियर है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। ओके, तो आपने मतलब गलत आंसर किया है, राइट? जी सर। अच्छा चलो, अब ये बताओ dy अपॉन dx प्लस रूट y इक्वल टू 0। अब बताओ,
अब इसका ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी पे कमेंट करो। सर इसका ऑर्डर 1 होगा, डिग्री 2 होगा और ये नॉन लीनियर होगा। ऑर्डर आपने बोला 1, डिग्री 2 और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ओके। अच्छा चलो ये बताओ, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू साइन एक्स, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, पहले तो ये बताओ। सर ये लीनियर है। इसका ऑर्डर और डिग्री कितना है ये बताओ। ऑर्डर 2 है, डिग्री 1। अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं, जी ठीक है, तो कौन कौन से टाइप की मेनली हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं जनरली, क्लासिफिकेशन बताओ अलग अलग टाइप की। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी आप पढ़ते हो। फर्स्ट ऑर्डर तो px इंटू वाई डैश प्लस qx इंटू वाई दिस इक्वल्स टू rx, ये एक हाँ, तो फर्स्ट इसमें ऑर्डर कौन कौन से केसेस, कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करते हैं आप लोग। होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। केवल होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। सर और एक एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका फॉर्म होता है जैसे m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई दिस इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस का ये एक पार्ट है। अगर वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वी कैन गेट द सॉल्यूशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, एंड अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो उसके लिए फिर हम अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जी इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन बताओ। माइनस साइन एक्स सर वाई स्क्वायर प्लस एक्स 4/4 प्लस माइनस कॉस एक्स माइनस या प्लस, माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट सी। ये है। जी सर। ध्यान से देख लो, कोई गलती तो नहीं दिख रही है। ये माइनस को तुमने यहाँ प्लस क्यों किया। नहीं वो माइनस ही होगा, एक्स 4/4 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो वहां पे भी प्लस ही आएगा, सारे प्लस नहीं होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। जी यहाँ जो एक्स 4/4 है वहां माइनस आएगा और कॉस एक्स के साथ प्लस आएगा। अभी क्या नाम तुम्हारा, सरिता। जी अभी कुछ टाइम लो, फिर से 2-3 दिन का, और फिर से रिवाइज करो डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो अभी कॉन्फिडेंस तुम्हारा उतना अच्छा नहीं आ रहा है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, उनमें तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो। स्टार्टिंग से बात करें, पहला क्वेश्चन सही आंसर किया तुमने कि C1 C2 को C मान के, ये अच्छा है पॉइंट तुम्हारा। ये डिफरेंशिएशन भी कर दिया और यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ऑर्डर, डिग्री और लीनियरिटी, ये तुम्हारा थोड़ा सा मेरे को कमजोर नब्ज लग रही है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। ऑर्डर, डिग्री, लीनियरिटी पता है तुम्हें सारा कुछ, लेकिन एक बार रिवाइज करो ताकि कोई अनसर्टेनिटी ना रहे माइंड में। जी ठीक है। जी अब यहाँ पे तुमने कौन सा क्वेश्चन था ये पीछे,
ये वाला, एक मिनट, ये ठीक हो गया था बाद में। ये लीनियर ऑर्डर टू डिग्री 1, ये ठीक है तुम्हारा आंसर। और यहाँ पे तुमने मिस्टेक करी छोटी छोटी, उनको ठीक करो। अब सर इसमें किसमें? तुम ये जो पहले प्लस माइनस का पंगा था, हाँ वो, ठीक है। जी जी, तो अभी तो वहां पे सही है ना गलतियां नहीं सर? होनी, अगर इतनी गलती करोगे तो दिक्कत होगी ना फिर। जी जी सर। इंटरव्यू के टाइम पे ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। और यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि तुमने पहले तो इसमें तुमने गलती करी, बाद में ठीक किया, फिर इसमें भी तुमने गलत कर दिया। रूट बाई है तो इसके स्क्वायर रूट को हटाने की जरूरत थोड़ी है हमें। हमें सर अगर डेरिवेटिव रूट के अंदर होता है, डेरिवेटिव को हटाना होता है, उसके रूट को हटाना होता है। एक्स और वाई जो है उनके रूट को नहीं हटाना होता हमें, और डिग्री कैलकुलेट करने के लिए। तो डिग्री इसकी 1 रहेगी। ओके सर, ओके, मैं ये है सोच नॉन रही थी लीनियर, ये इक्वेशन नॉन लीनियर है, क्योंकि y की पावर 1/2 है, 1 नहीं है। ओके सर। y की पावर 1/2 है ना। अगर हम इसको y 1 करने के लिए स्क्वायर करेंगे तो डेरिवेटिव की पावर 2 हो जाएगी, फिर जी जी, तो रहेगी नॉन लीनियर, लेकिन डिग्री 1 रहेगी इसकी। ठीक है सर, याद रहे। हाँ। और ये बताओ, अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं dy अपॉन dx -8y, ठीक है ना, x जी इक्वल टू 5x की पावर 11। सपोज ये इक्वेशन लिखी मैंने, जी इसको सोल्व करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, मुझे प्रोसीजर बताओ। सर, इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स फॉर्मेट का है। तो इसे हम बर्नौली इक्वेशन है, फिर इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के ई टू, वो क्या ये फॉर्मूला है। बर्नौली इक्वेशन है ये? आपने बोला बर्नौली इक्वेशन है ये, क्या ये ये बर्नौली इक्वेशन है? नहीं है, अगर ये x टू द पावर n हो गया है ना क्यू एक्स में, तो ये बर्नौली नहीं है, बट उसको इसको हम उसके फॉर्मेट में तो चेंज आपने करके क्यों करते बोला हैं। बर्नौली, क्यों बोला फिर? आपने हाँ, बर्नौली क्यों बोला फिर इसको? मतलब उसके फॉर्मेट में चेंज करते हैं इसको। ऐसे नहीं ना। अब बताओ मुझे, अब क्या है ये? y डबल डैश, y की पावर 11। जब y के पावर, अब क्या करोगे? सर ये y डबल डैश है ना, इसको डिवाइड में ले जाएंगे। 1/y डबल डैश dy बाई डी एक्स प्लस डबल डैश नहीं, 8, 11, y की पावर 11। सॉरी y के पावर मतलब 1/y के पावर 11 dy बाई डी एक्स प्लस 8 बाई वाई 10 इंटू एक्स दिस इक्वल्स टू 4। अब तो ये इसको हम, बर्नौली है, ये वाली बर्नौली है, जी, ठीक है। और इसको, हाँ, फिर उसको y 1/y10 को हम कुछ कंसिडर करके फिर उसको डेरिवेटिव करके, तो वो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और उसमें उसकी वैल्यू पुट करके फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और फर्स्ट वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट निकाल के और उसको मल्टीप्लाई करके ठीक y है। इंटू, जी अगले इंटरव्यू में न्यूमेरिकल मेथड और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वापस, ठीक है। सर न्यूमेरिकल मेथड अभी मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, अभी थोड़ा घर पे आ गई थी, तो इसलिए जब भी मैं पढ़ रेडी नहीं रही। कर लो बता देना, तो रेडी सर कर लो एक 1-2 दिन में बता दो मुझे। सर, तो इसका और पीडी का एक बार और कर लेते हैं। ठीक है, कल कर लेंगे। ठीक है सर, कल इसी टाइम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से पूरा एक बार रिवाइज कर लो फिर, ठीक है। ठीक है सर। छोटे छोटे कंफ्यूजन हैं उनको दूर करो। काफी नॉलेज है तुम्हें अच्छी, कर लोगे तुम आराम से, डिजर्विंग हो। थोड़ा सा कंसेप्चुअल मतलब जो वो आ रही है ना माइंड में, छोटे छोटे कंफ्यूजन, उनको दूर करना है। ठीक है सर।